डिप्रेशन और एंजाइटी, ये दोनों ऐसी बीमारियां हैं कि इसके अटैक्स होते हैं। अटैक जिस तरह से हार्ट अटैक होता है, जिस तरह से ब्रेन हेमरेज होता है, बाकी और किसी ऑर्गन में अटैक नहीं होता। हाँ, किडनी फेलियर होता है, पैनक्रियाज काम नहीं करता है और चीज़ें होती है, लेकिन बाकायदा तौर पर अटैक। अटैक हम बेसिकली नॉर्मल लैंग्वेज में उसको कहते हैं जो कि फिजिकल अटैक आपके ऊपर होता है। कोई भी जानवर या कोई भी इंसान आप पर फिजिकली कोई अटैक करे तो उसको हम अटैक कहते हैं। तो ये भी अटैक है, लेकिन इनवर्ट। ये दोनों बीमारियां इकट्ठे ही ट्रिगर आउट करती है। ये ट्रिगर करती है, जिस तरह से पिस्तौल में से गोली निकलती है तो एक ट्रिगर करता है तो वो ट्रिगर आउट होती है। तो एकदम से ये अंदर कहीं होती है आपके मौजूद, लेकिन ये एक वक्त में ट्रिगर करती है। और इसकी अटैक की जो पेन है वो फिजिकल पेन से भी ज़्यादा है कि अगर आपको फिजिकली कोई मारे तो, सामने से कोई मारे तो उससे भी ज़्यादा इसकी पेन है। और इसकी मिसाल मैं ऐसे दे देता हूँ कि अगर आपको 24 घंटे के लिए एक बड़ा ताकतवर शख्स आपके जिस्म के एक हिस्से पर मुक्के मारी जा रहा है एक ही फोर्स के साथ, 24 घंटे मार रहा है, तो वो जो दर्द होगा ना, ये वो दर्द है फिजिकल पे। आपका अंदर जो है, अपेरेंटली तो कोई जख्म नहीं है, कोई खून नहीं, लेकिन अंदर जो है आपकी हालत हो रही होती है ना, ये एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकता अल्फाज में, क्योंकि मैंने कोशिश की थी तो मैं कामयाब नहीं हो सका। तो फिर आप लोगों को समझाने के लिए एक वीडियो अभी चलेगी जिसमें थोड़ा सा किसी हद तक बताने में कामयाब हुए हैं उस वीडियो में कि 50% कह रहे हैं, 40% कह रहे हैं कि एंजाइटी अटैक क्या है। From the outside, it's easy to think that somebody's got it all figured out. Because my hair is curled and my cheeks are intentionally flushed, I must not have a care in the world. As if it were expected for my demons to be worn like a scarlet letter pinned to my chest. And they assume if you cannot see it, then it's not really there. As if pain does not exist unless you're bleeding or slung in a cast or staggering with a limp. But sometimes the most painful demons are the ones they can't even see. So we learn how to smile, how to grin and bear it, because nobody likes to talk about the tough stuff. Hell, I don't like to talk about the tough stuff. I have anxiety. It feels like every cell in my body is moving so fast that my veins are blurry. That despite the constant metronome of my heartbeat inside my ears, it's like listening to a spastic drum line. It feels like bees in my ears, like a broken white noise machine playing all of the sounds at once. And I don't even realize I'm gritting my teeth or cracking my knuckles or rubbing my forefinger against my pinky or twisting the gold band on my middle finger, holding onto myself like I'm the only lifeline bridging the gap between reality on my own 2 feet and the atomically loud abyss of noises and sounds and feelings of fleeting rushing through my veins. And I'm avoiding eye contact. Not because I'm not listening to what you're saying, because I'm listening to the sound of my own voice, hoping that through your ears you can't hear that it's 2 octaves too high and on the verge of breaking because my palms are sweating and I somehow forgot to speak with anything behind my words other than insecurity. My anxiety feels like fire. Unexplainably hot and rash and frustrating as I gnaw the inside of my cheek as if the solution to this feeling is buried between my teeth and gums. It feels like drowning, but it feels like burning, and it feels like fucking forever. I imagine my feet moving with trails of dust behind them like those cartoons because somehow it feels like I'm moving faster than the 60 seconds they've allowed in a minute. All the while, I'm just playing catch up on the stopwatch. And it doesn't add up like it did in high school mathematics. I can't carry the 1 and find the square root of the problem because most of the time, there is no problem. There's no life or death situation. There's no rhyme or reason. There is just feelings, and I'm feeling all of them at once. Some days are better than others. Some days are worse.
but they're just days. And I've got more where they came from. यानी कि एंजाइटी अटैक क्या है। एंजाइटी और डिप्रेशन अटैक में जो दोनों में फ़र्क है वो ये है कि एंजाइटी इज़ ओनली इमोशनल अटैक। ठीक है, जो मेरे साथ हुआ मैं आपको वही बता रहा हूँ, मैं क्लिनिकली या थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहा। तो मुझे जो इमोशनली जो मुझे अटैक होता था तो वो जो है एंजाइटी अटैक हो गया, और उसके बाद जो मुझे फिज़िकल भी अटैक होता था और इमोशनल भी, मतलब दोनों मिला के वो डिप्रेशन। तो जब ये दोनों बीमारियां इकट्ठे अटैक करती हैं तो अपेरेंटली कुछ भी नहीं है। अपेरेंटली आप को अगर आप ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, अगर आप घर में हैं, किसी जगह पर भी हैं, तो अपेरेंटली तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो आप अगर कोई भी ऐसी हरकत करेंगे तो वो ड्रामा महसूस होती है, और कई लोग उसको ड्रामा भी समझते हैं। तो फिर उस अटैक में बहुत ही बहादुरी का काम है जो सुन रहे हैं मैंने, जिनको ये होता है, और फिर वो अपने मुंह पर एक स्माइल भी रख लेते हैं लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कि जी आई एम ओके। वो डरते हैं बताने से कि भाई मुझे ये बीमारी है, या डरते हैं बताने से कि मुझे ये पेन है, क्योंकि अगला बंदा या तो मजाक उड़ाएगा या फिर उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा अपने हिसाब से कि भाई नहीं नहीं तेरी विल पावर है तो उठ, ये है वो है, तू घर से बाहर जा, या तू ऑफिस में काम कर, अपना जहन किसी और जगह पे लगा, ठीक हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। ये हमारी परसेप्शन है कि ऐसा होता है। मैं तो गुजरा हूँ इसमें से, इस वजह से मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। किसी और में इतनी हिम्मत थी नहीं थी, किसी और ने बताया नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ साफ साफ कि ये बहुत ही गंदा अटैक है, और जिसको होता है उसको पता है। प्लीज़ जिसको होता है वो अपने किसी बंदे को बताया करे, समझाया करे, क्योंकि ये बीमारी जो है एट लास्ट जान लेके जाती है।